I'm sure you've heard the news. Tech is evolving faster than ever. ByteMinders is here to break it all down. This is Season of Change. Dive in, learn from the best, and stay ahead. Season of Change by ByteMinders, where you learn, build, and evolve. Okay. Hello, everyone. Welcome you all in our very first podcast, Season of Change, where we discuss new things in tech industry. So I would like to welcome Mr. Anand Dwarkanath, founder at Advances, to for this session. Hello, sir. Welcome to our podcast. Hey, hi Anshuman. Happy to be here. Pleasure, sir. So, before starting this podcast, I would like our listeners to hear about your starting field stories and your early days in the field of cybersecurity, and a very, very brief introduction of yourself. Okay, cool. So, good afternoon, everyone, to the viewers of ByteMinders EduTech Seasons of Change episode. Okay, so I am Anand Dwarkanath, and I have around 16 to 17 years of experience in the cybersecurity industry. Currently, I am the founder of Vinces training and consulting company. Uh, so, my career journey started way back in 2008 with McAfee. I joined their McAfee Labs, which was their research division, doing threat analysis and research. So back in those days, I was just like you, with not knowing what cybersecurity was, or didn't have much of an idea. So one of my friends actually came, who was working with McAfee at that point of time. He was in the spam team and analyzing mails. So he came to me and then he told that, okay, there is a position called threat research analyst. So would you be interested? So that name obviously was very fascinating, right? Threat research analyst. But I didn't know, or I didn't have a clue of what that was. कि क्या है, क्या करना है, right? So I asked him, okay, this name sounds fascinating, but what is it that I have to do? And what do I prepare for the interview, right? So then he told me that, okay, we do a little bit of malware analysis and spam mail analysis. So we look at all those things and then write detection signatures for it. So you might have to learn about little bit about malware. तो उस टाइम पे आई वेंट एंड डिड a little bit of a research on what is malware, what are the different types of malware, right? At that point of time, I think ransomware was still not a potent threat. उस टाइम पे it was primarily worms and viruses, trojans, उस type के threats were. So I started reading about that and got uh, interviewed, so got selected somehow. So it was for a weekend position. So we started. So I started my journey as a malware analyst in McAfee. And then obviously as time progressed, I spent around 6.5, 7 years in McAfee. And then as time progressed, I went to a startup called as Cyfort. So that also gave me a different experience from a startup perspective. So you got to know how business really works, right? So even the small things matter at the initial stage. And then I was working. It got later acquired by Juniper Networks, and then I moved on to Sony. So the last 7.5 years, I was with Sony, and I was leading the SOC team there within India. I was the point of contact there, and so our team was managing doing the phishing mail analysis, your cloud security monitoring, right? Your insider threat monitoring and things like that. So उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला. Hmm. And obviously I joined in Sony as a technical lead, and then grew up to a position of program manager. So that was a good experience as well, because Sony is again a multinational company with different, you can say, geographies, different cultures from Japan to Europe to USA, right? So again, it was a great learning experience, and that's how this thing. So now, somebody might ask me what triggered Vinces, right? Hmm. So the point was, while I was taking interviews in Sony,
So I saw that there was a lot of gap in what the industry demands and what the students or the young working professionals have, right? So this is where that gave me and my colleague an idea to start Vinsys, where we want to focus on the fundamentals and make sure that we help the aspiring cybersecurity professionals get into this cybersecurity field. So I think, yeah, this is a brief description about myself. Okay, great, inspiring, sir. So before not wasting much time in other stuff, I'll like directly start with some of the question from our viewers. So basically, Mm-hmm. sir, you आप बहुत टाइम से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं. Like as you mentioned, you have Mm-hmm. plus 16 plus years of experience. So for starting, the people who are starting in this particular field, like what should be the focus point for them, और क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे इन्हें focus करना चाहिए? There are many branches to pursue in CSE and Mm-hmm. cyber security. तो क्या Correct. फंडामेंटल या क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जिससे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या कैंडिडेट उसे परस्यू करना शुरू करे? सर उस पे अगर आप कुछ Okay. बता पाए. Okay. Okay, definitely. So, so I think this problem, even I think हमारे ज़माने में भी था, around 16, 17 years back, right? Because our education system doesn't focus from that perspective, right? So अभी आप, whether you are a BCA student or whether you are a BE student or MCA student, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को मालूम नहीं रहता है कि विच इज अवर स्ट्रेंथ, व्हाट वी नीड टू डू, राइट? हम लोग सब कुछ सीखते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टू सिस्टम डिजाइन टू नेटवर्क सिक्योरिटी, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमको कहाँ जाना है, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स विच वी ऑलवेज फेस. But now, if you focus on today's time, I think there is a slight improvement, but मैं ये नहीं कहूँगा कि it is 100% problem is solved, because still we as youngsters we struggle to decide what should be our career path, right? But this is where you also have an opportunity. Ki now, if you are, say for example, you have just started your BCA or you just entered your graduation, and if you are interested in a particular field, so say for cyber security, since we are talking about cyber security today, we will focus on cyber security. आप क्या कर सकते हो कि यू कैन एक्सप्लोर ऑल द डोमेन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि साइबर सिक्योरिटी में व्हाट आर ऑल द डिफरेंट डोमेन्स अवेलेबल, right? So because even now when people look at cyber security, they think that hacking या BA PT ही is one of the entry to cyber security, राइट? सो वैसा बिल्कुल नहीं है. दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट दैट इज नॉट द ओनली वे टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी. तो आपके लिए यू हैव योर क्लाउड सिक्योरिटी, you have your network security, you have your malware analysis, you have your digital forensics, you have your आजकल के जमाने में AI सब आया है, तो you have some penetration testing regarding AI, Gen AI, right? So what I would suggest for a person starting today is आप पहले तो 1 साल या 1.5 साल पूरा एक्सप्लोर कीजिए कि कितने सारे डोमेन्स में, मतलब हर एक में आप यू स्पेंड अ मंथ, लुक एट व्हाट इज व्हाट, राइट? आप थोड़े से आज के दिन में आपको, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप गूगल या चैट जीपीटी में डालोगे तो आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट? एट अ बेसिक लेवल. सो आप उसको you go through it for each month. Like say for example, आपने रिस्क मैनेजमेंट पकड़ा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क काम कैसे होता है, रिस्क असेसमेंट होता कैसे है, राइट? तो आप एक मंथ वो पूरा पढ़िए. फिर सेकेंड मंथ में प्रॉब्ली यू माइट, वहां से आपको कुछ लिंक्स मिलेगा कि अच्छा एप्लीकेशन से कुछ रिस्क आती है या क्लाउड से कुछ रिस्क आती है. सो व्हाट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज क्लाउड सिक्योरिटी, राइट? तो आप वैसे करके, इफ द फर्स्ट ईयर इफ यू आर एबल टू एक्सप्लोर ऑल द डोमेन्स, एंड देन आपको एक और चीज होगा कि एज यू एक्सप्लोर डिफरेंट डोमेन्स, आपको कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट, कोई ना कोई उसमें शायद आपको इंटरेस्ट आए कि मुझे इसमें ज्यादा फोकस करना है, राइट? सो एज अ एनालॉजी अगर मैं बोलूं कि अगर
आपको मैं बोलूं कि आपको समोसा, जलेबी, रबड़ी और आइसक्रीम, मिल्क शेक में आपको क्या अच्छा लगता है, एंड इफ यू हैव नेवर टेस्टेड एनी ऑफ देम, यू हम्म, डोंट नो, राइट? या आपके फ्रेंड ने बोला हो कि मुझे समोसा अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भी समोसा ही अच्छा लगे, राइट? आपको मिल्क शेक अच्छा लग सकता है, हम्म, राइट? तो उसी एनालॉजी के हिसाब से somebody might tell application security is an interesting field, but not necessarily for you, right? For you, probably forensics might be interesting, right? Yeah, cloud security might be interesting. So the first year you explore all the domains, एंड सेकेंड ईयर में जब आपको पता चले कि हाँ मेरा थोड़ा नेचुरल इंक्लिनेशन इस सब्जेक्ट में है या इस हम्म, डोमेन में है, देन व्हाट यू कैन डू इज डू अ बिट ऑफ अ डीपर डाइव। उसमें तब जाके आप थोड़ा सा और डीप डाइव पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, टेक्निकल, फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट आप यू गो डीपर। अच्छा, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स है तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट, व्हाट आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, व्हाट आर सम ऑफ द टूल्स, राइट? या एक टूल को जाके आप सेटअप कैसे कर रहे हैं लैब को, राइट? तो उसमें कौन से टूल्स फ्री हैं, कौन सा अवेलेबल है, किसके लिए काम आता हम्म, है, राइट? तो ऐसे करके इफ यू आर स्टार्टिंग टू delve डीप इनटू वन ऑफ द फील्ड्स, then I think by the time you are out of your graduation, at least आपको एक idea रहेगा, and you would probably be also good at one particular field, okay. right? So this is what I would suggest for a person who was starting now. So that is what would be my suggestion. आप एक पहले एक्सप्लोर करो सारे डोमेन्स, देन हम्म, आपको जिसमें इंक्लिनेशन है, जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, यू कैन डेफिनेटली लुक एट दैट इन मोर डिटेल। थैंक्स अ लॉट सर। सर इसमें अब एक चीज़ और आती है कि लाइक फॉर स्टार्टिंग इन द फील्ड, आगे इंटर्नशिप्स एंड डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मेरे हमारे पास आता है कि ये जो लाइक इंटर्नशिप्स वाली चीज़ें हैं, कौन सी इंटर्नशिप करनी सही है, किस इंटर्नशिप में, बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द इंटर्नशिप जहाँ वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ इंटर्नशिप करो, यू विल गेट अ कोर्स, यू विल गेट स्किल्ड एंड देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। सो व्हाट टाइप ऑफ इंटर्नशिप या किस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन हैंड लाइव ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप कराती हैं, किस टाइप की इंटर्नशिप हमें अप्रोच करनी चाहिए, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ये बहुत ही ओके। लाइक डिमांडिंग टॉपिक रहता है। So yes, so definitely, देखिए, internship is primarily aimed at getting you a little bit of feel of the real world workplace, ठीक है ना? तो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, पहले तो ये इंटर्नशिप का ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, दिस थिंग, सो पीपल यूज टू गेट डायरेक्टली प्लेस्ड, ठीक है? सो इसका इवोल्यूशन थोड़ा समझते हैं, सो दैट इट विल हेल्प योर ऑडियंस टू मेक डिसीजंस बेटर। तो जब 15-16 साल पहले पीपल हैड और ऑर्गेनाइजेशंस हैड द टाइम टू ट्रेन द न्यू वर्कफोर्स, राइट? जैसे न्यू ग्रेजुएट जो कैंपस प्लेस्ड होते हैं, उनको बेस्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट्स या टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे जो इंटरव्यू लेते थे कैंपस प्लेसमेंट में, उनको ले लेते थे। एंड देन फॉर द, तो वहीं पे देयर वाज अ गैप बिटवीन व्हाट द एकेडमिक्स यूज्ड टू टीच एंड इंडस्ट्री यूज्ड टू वर्क ऑन, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास टाइम होता था, दे यूज्ड टू ट्रेन यू ऑन दैट स्पेसिफिक स्किल्स, एंड देन उसके बाद 6 महीने का जैसे अप्रेंटिसशिप हो गया या मतलब प्रोबेशनरी पीरियड हो गया, वहां पे आपको ट्रेन किया जाता था, देन आपको प्रोजेक्ट के ऊपर डाला जाता था काम करने के लिए, ठीक है? बट अभी क्या हुआ है, ओवर लास्ट फ्यू इयर्स, नाउ दे आर सीइंग दैट दैट डजंट वर्क इन द लॉन्गर रन। तो क्या होता था कि पहले या आज के जमाने में भी कई कंपनीज में होती हैं कि वी हायर अ कैंपस प्लेसमेंट किया, मैंने उस बंदे को ट्रेन किया फॉर अराउंड से 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, एंड देन आफ्टर 1 ईयर दैट guy or lady leaves the organization, right, and goes to another organization। तो इनको क्या हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाता है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी एंड टाइम ऑन यू, 6 महीने तक सिखाया है, लेकिन बाय द टाइम आप उसका रिजल्ट देने आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, तब तक आप दूसरी कंपनी में चले गए या एमएस करने चले गए, राइट? तो ऐसा सिचुएशंस होने के कारण व्हाट अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, दे आर नॉट willing to spend too much of money and time on new graduates। So what they are telling is, if the guy is already skilled
राइट, देन वी विल हायर हिम, एंड हाँ प्रॉब्ली थोड़ा बहुत ट्रेनिंग बेसिक जो चाहिए होगा विच विल फिट इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव, दैट मच ऑफ बेसिक ट्रेनिंग या जो भी है वो देके वी विल मूव ऑन, सो दैट वी डोंट हैव, अगर वो कल को छोड़ के भी जाता है या 6 महीने के अंदर, इफ ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, देर इज नॉट मच ऑफ अ लॉस फॉर अस. सो नाउ इस एंगल से क्या हुआ कि the company started not taking much freshers, and then there was something called some companies started with this key, let's see if we can do something like a internship. So internship में concept क्या था कि we will hire these, we will see before offering them, let's Yeah. or offer, we will give them a sort of a ट्रायल कह के कह सकते हो कि उनको 3 महीने लेते हैं आफ्टर सम बेसिक टेस्ट ऑब्वियसली Hmm. एंड इंटरव्यूज, बट वी विल ट्राई टू सी इफ दैट पर्सन can help us in some way, Hmm. right, and he will also get a real time exposure. तो idea internship का ये था कि if he is good at say web development or something, we will onboard him. हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें उसको थोड़ा सा बेसिक ग्राउंड वर्क करने के लिए उसको लेंगे, उसको भी एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड देन वी विल गिव हिम अ सर्टिफिकेट एंड देन send him back to the college, and if he is really good, then probably we will offer him a permanent job on our rolls, payrolls. ठीक Okay. है, तो बट अभी वो जाते जाते क्या हुआ कि देयर ऑल्सो आई थिंक कंपनीज फाउंड आउट दैट इंटर्नशिप इज अगेन दे हैव टू ट्रेन few people on the technical skills, right, so because that is not readily available in the colleges. तो अभी तो उस हिसाब से आई थिंक फ्यू कंपनी स्टार्टेड टेलिंग ओके वी विल ट्रेन यू, देन दे विल गिव यू सम स्मॉल डेमोस और सम स्मॉल टास्क एज अ बिगर प्रोजेक्ट, and then they'll give you a certificate and then send you back, Yeah. राइट. तो उससे क्या होता है कि आज के दिन में फ्यू कंपनीज रियली गिव यू द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और वट एवर इज रिक्वायर्ड, बट फ्यू कंपनीज में नहीं होता है, सो दैट इज जस्ट फॉर नेम सेक यू गो इन फॉर इंटर्नशिप एंड बट यू रियली डोंट लर्न समथिंग ऑन द जॉब, right. So इस केस में I would suggest if you are looking for internship, make sure that you really ask the hiring manager या आपका जो भी point of contact है from college या from the company, so you make sure that you are getting a real hands-on experience, right. So that is one of the first things, and you have to make sure that you extract every ounce of their experience while you are doing the internship. तो उनसे उतना मतलब वसूल करो उनका एक्सपीरियंस से, जिससे कि आपको काम करने का मौका मिले एंड यू गेट रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट. सो इट शुड नॉट बी जस्ट उन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया, कुछ डेमो दिखाया एंड दे आर गिविंग यू अ सर्टिफिकेट. तो एंश्योर दैट दे यू आर गिवन सम टास्क टू वर्क ऑन विच विल, जैसे अभी कुछ इंटीग्रेशन ही हो गया, जैसे आपने बोला कि मुझे पाइथन आता है, उन्होंने भी आपको पाइथन डेवलपर के रूप में दे टुक यू टू अ इंटर्नशिप, राइट. सो इट शुड नॉट बी लाइक ओके उन्होंने फिर से आपको कुछ ट्रेनिंग दिलाया एंड आपको सर्टिफिकेट देके दे दिया. सो यू कैन आस्क फॉर देम कि आप मुझे एक छोटा सा इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ मतलब दो टूल के बीच में कुछ एपीआई इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बोलो, या कुछ छोटा सा स्क्रिप्ट करने के लिए बोलो जहां आपको कुछ रिपोर्टिंग करना है ऐसा. सो वेर इन यू रियली गेट दैट hands on skill in the real world environment, right, so under their supervision. So वो करने के बाद I mean that I think you should approach that sort of internships rather than just for the sake of certificate. तो अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं भी मिलता है तो आई थिंक दैट इज ओके, बट इफ यू गेट द रियल हैंड्स ऑन स्किल्स दैट वुड बी मोर वैल्यूएबल rather than a certificate. ओके सर, बट दो जो आज के टाइम में हम जॉब्स देखते हैं, बेसिकली Hmm. काफी टाइम से आप भी अगर देख रहे होंगे तो जो मार्केट में हमारे पास जॉब्स आ रही हैं, उन जॉब्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो फ्रेशर होता है वो दे रिक्वायर लाइक एटलीस्ट 1 to 3 years of experience in a field. For example, if we take a SOC analyst, so Mm-hmm. basic for being a SOC analyst as a fresher in any company, they require at least 1 to 3 years or 0 to 3 years of experience. तो सर Mm-hmm. ऐसे सिनेरियो में अगर हमें उस टाइप की इंटर्नशिप्स मिल रही हैं जिसमें हम प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पा रहे, तो कैसे इन जॉब्स को हम क्रैक कर सकते हैं, या क्या उसके लिए रोड मैप रहेगा? हाँ, तो इसके लिए आप सी देखो, इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग द इंटरव्यूअर. ठीक है, आप देखो अगर जैसे इंटर्नशिप्स आप कर रहे हो, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि मतलब जैसे कौन से टूल्स यूज होते हैं सॉक में, राइट, क्या काम किया जाता है सॉक में. तो आप एक तो
खुद अपने घर में कुछ एक लैब सेटअप कर सकते हो, बेसिक लैब, राइट? जिसमें से सी बेसिकली स्लॉक में क्या होता है कि जनरली लॉग मॉनिटरिंग होता है, लॉग्स आते हैं, सिम में आते हैं, एंड देन पीपल स्टार्ट डूइंग दैट एनालिसिस एटलीस्ट एट L1 लेवल, दैट अ जूनियर लेवल, एंड देन अगर फॉल्स पॉजिटिव है या ट्रू पॉजिटिव है वो डिसाइड करके दे एस्केलेट इट टू द L2 टीम, एंड देन अदर छोटे मोटे कुछ टास्क रहेंगे. सो नाउ इफ यू कैन कन्विंस द इंटरव्यूअर, अगर आपको क्रैक भी करना है, अप्लाई भी करना है, तो आप ऐसा डाल सकते हो कि आई हैव 6 months to a years of experience, बट आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू लाई ऑन द रेज्यूमे एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसके हिसाब से आप लिखो कि हाँ मेरे को इसका नॉलेज मालूम है, आई एम गुड स्किल्ड एट से malware analysis, skilled at phishing analysis, skilled at log monitoring, right, skilled at whatever XYZ, जो उनका जो थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आप अपना रेज्यूमे मैच कीजिए एंड उसको फॉरवर्ड कीजिए, राइट. एंड देन वो सिर्फ वो तो एक हर्डल हो गया, ठीक है, कि आपका रेज्यूमे ATS से पास होके प्रॉब्ली यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. लेकिन द रियल thing begins when I call you for an interview and you are able to tell me or convince me कि even though you don't have a 1 year experience but you are equivalent in terms of your thought process या आपका skill असली में है, ठीक है. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर मैं 1 साल का एक्सपीरियंस का बंदा हूँ, ठीक है, आई हैव सी एंड दिस इज माय रियल एक्सपीरियंसेस. I have seen people with 1 to 2 years of experience. They come and they want to apply for a L2 role, or they are just changing the company. ठीक है, वहां पे भी L1 में ही थे, यहाँ पे दूसरी कंपनी में आ रहे हैं, वहां पे भी L1 पे है, या they want sometimes to go to L2. नाउ जब मैं पूछता हूँ उनसे कि अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये प्रोसेस बताइए, या ये आपने कैसे किया, तब उनका आंसर क्या होता है जनरली कि दे विल टेल कि सर ये मैंने काम किया नहीं. इसके लिए आई हैड अनदर टीम, L2 टीम, which was looking into this portion of the work. So now this is where they lose out. अगर आपको मालूम नहीं है and you have don't even have a basic idea of how to handle things, then obviously I will not hire you, right? लेकिन if you have the same confidence and you can tell कि this is how it works, right, or this is my thought process, ये ऐसे approach करते हैं, राइट. सो तब मुझे एंड अगर मैं आपको एक सैंपल देता हूँ या कुछ नेटवर्क ऐप रिकैप देता हूँ या एक फाइल देता हूँ उसका एनालिसिस करने के लिए बोलता हूँ, राइट, तो या एक मेल देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ये मुझे बताओ वेदर इट इज फिशिंग मेल और नॉट, राइट. तो वैसे अगर मैं जब आपको टास्क देता हूँ एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, right, if you are able to do it and show that you have the skill, I would still prefer you as a fresher rather than somebody telling कि सर मेरे को ये मैं नहीं जानता, ये मेरा दूसरा टीम L2 टीम करता था प्रीवियस कंपनी में, right. So this is one of the things where you can show that stands more than experience, ठीक है. तो that is one of the ways. The second way is you can also be, जैसे sometimes क्या होता है कि we have seen, अभी मुझे लगेगा कि आपके मैनेजर ने या सॉरी द हायरिंग मैनेजर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, प्रॉब्ली दे माइट से ओके वी डिसाइडेड टू गो विद सम अदर कैंडिडेट, राइट. तो आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी भी आप ये कर सकते हो कि यू कैन स्टिल पुश हिम टेलिंग दैट व्हाट एल्स डू आई नीड टू डू, ठीक है, तो सो दैट आई कैन पुश योर माय कैंडिडेचर. तो आप बोल सकते हो कि क्या मुझे एक टास्क दे सकते हो जिससे कि आपको मेरे कैपेबिलिटीज पे यकीन हो, right, you get the trust that I can do this job for you, right. So sometimes क्या होता है कि पहला राउंड it will be mostly theory, लोग theoretical पूछते हैं and then theoretical answers आते हैं. But if you feel that okay this was not a best utilization of my skill set, या मतलब उन्होंने जांचा परखा नहीं है मेरे को ढंग से, so you can definitely go back to the hiring manager, tell him that can you give me some tasks or you want me to come do solve some samples or solve some provide you some report, ऐसा करके where you try to tell him and give him the confidence कि I have the skills, right. So occasionally it will work out also, that also we have seen in few instances where we wanted to go ahead with another candidate but when we felt that okay we can give this candidate a chance, right. So these are the two ways wherein you can, even though you don't have real experience in the real world, if you have developed train किया है आपने कि कैसे, but you have to go little bit deep,
right? When you are trying to prove that you are better than a 2 years or 1 to 3 years candidates say better who, so you have to develop those sort of skills by training and learning and doing it hands on. तो वो एक चीज है, फिर से ये नहीं कि मैं भी मतलब हाई लेवल पे पढ़ के जा रहा हूँ, एक हवा हवा पे बोल रहा हूँ वहां पे जाके, जस्ट आई एम अगेन टेलिंग थियरी, right? So you should be able to show that you know those skills. ओके, क्वाइट गुड सर। सर एक हमारे पास क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हमारे एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं Mm-hmm. और उन्होंने अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है एंड Okay. वो अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप इस पर्टिकुलर फील्ड में ओपन कर लाइक लाइक स्टार्ट करना चाहते हैं, ही इज फाइंडिंग आउट। सो Mm-hmm. उन्होंने सम बेसिक स्किल्स के ऊपर काम किया, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिक्स ऑफ वेब Mm-hmm. डेवलपमेंट एंड डेटाबेसेस। सो अभी Mm-hmm. तक उन्हें कोई मेजर लाइक मतलब अभी तक उन्हें कोई इंटर्नशिप नहीं मिल पाई, तो क्या मतलब प्रोसेस है और Mm-hmm. किस तरीके से हम एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप को हम लाइक अप्रोच कर सकते हैं, या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, या क्या और स्किल सेट है जिन पे उन्हें काम करना चाहिए, इसके बारे में Okay. बताएं। तो नाउ सो फॉर दैट एग्जांपल जैसे आपके किसी ऑडियंस ने बोला है, सो नाउ फर्स्ट थिंग इज ही ट्राइंग टू, तो उनको ये देखना है कि वो किस फील्ड में ही इज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप. Okay, ओके। now is it cyber security or is it in his own that web development जो कोर्स किया है उन्होंने या जो भी किया है उसमें, right? Because if you are looking at, so the main thing यहाँ पे ये होता है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन से उसमें जाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना रेज्यूमे हो गया या जो भी स्किल सेट है उसको अलाइन करना है, राइट? अगर आप बोलते हो कि मैं साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आप अगर अपना रेज्यूम वेब डेवलपमेंट पीएचपी उस टाइप में डाल रहे हो, तो देन प्रॉब्ली आई विल नॉट अलाइन विथ यू, राइट? क्योंकि मुझे साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा चाहिए और आप बोल रहे हो कि मैं डेवलपमेंट का काम करता हूँ, राइट? लेकिन अगर आप डेवलपमेंट का ही काम कर रहे हो, तो सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू टू. तो आप इफ यू आर वांटिंग टू गो इनटू साइबर सिक्योरिटी, देन चेंज योर रेज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन या इंटर्नशिप का जो अपॉर्चुनिटी आया है जहां पर उन्होंने लिखा होगा कि वी आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स विद सो एंड सो स्किल्स, राइट? या बेसिक क्लाउड सिक्योरिटी स्किल्स या बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, राइट? या बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स, जो भी उनका लिखा होगा, तो उसके हिसाब से आप उसको अलाइन कीजिए. एंड देन you have to make sure that you stand out. See, because क्योंकि हजारों लोगों का उनके पास इंटर्नशिप के लिए रेज्यूमे आएगा, राइट? सो अभी जैसे मैं अगर हायर कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रॉब्ली आई माइट get 10 to 20 to 50 resumes. So now how do you stand out, राइट? तो वो चीज है आप मैंने तो इससे व्हाट वी विल कम टू इज फ्रॉम अ रेज्यूमे प्रिपरेशन के, थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे उसमें. तो व्हाट वी हैव सीन इज व्हेन यू प्रिपेयर योर रेज्यूमे, people irrespective of ages or like experience, this thing, they do commit a lot of primary mistakes or basic mistakes जो बोलते हैं, राइट? वन इज, एक तो उनका रेज्यूमे लेंथ काफी लंबा होता है, लाइक 4 or 5 pages, which is not required. एंड दूसरा है कि उसमें इम्पैक्ट नहीं दिखाते हैं कि उसने उससे क्या फायदा हुआ. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक, आप जैसे ये बंदा अगर whoever is talking about that web development and he's searching for this thing, उन्होंने लिखा होगा कि I have handled or wrote some scripts, right, to do this. तो वो तो ठीक है, वो जेनरिक हो गया, राइट? लेकिन आपको इम्पैक्ट नहीं दिखा. तो ऐसे तो हजारों लोग लिखेंगे कि मैंने भी अपना कुछ स्क्रिप्ट लिखा है और ये करने के लिए, मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा है ये करने के लिए, बट हाउ डू यू स्टैंड आउट? सो उसके लिए आपको इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा कि अच्छा, मैंने ये जब स्क्रिप्ट लिखा तो आपने कुछ ना कुछ रीजन की वजह से लिखा होगा ना. So whether you wanted to save time, right? या you wanted to increase the efficiency of some particular process, right? या आपको कुछ कॉस्ट सेव हुआ होगा उससे, उस स्क्रिप्ट की वजह से, राइट? या कोई बाहर का टूल वो काम कर सकता था लेकिन प्रॉब्ली कस्टमाइजेशन नहीं था, तो इसीलिए शायद आपने ये स्क्रिप्ट लिखा. तो यू नीड टू बी एबल टू प्रोवाइड दैट इम्पैक्ट कि जो आपने काम किया वो किस तरह से उस प्रोजेक्ट में या आपकी कंपनी को बेनिफिट किया, राइट? ओनली देन दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अ स्टैंड आउट डिफरेंशिएटर फॉर यू,
right? So like say for example, I wrote a script which resolved my ticket closure time by say 50% or by 80% or by 2 hours, right? So कुछ ना कुछ तो फायदा दिखाने का है ना कि मतलब उससे क्या हुआ. So that will definitely increase your chances of मतलब at least pass the first filter. तो इंटर्नशिप में हजारों रेज्यूमे आते हैं, आपका अगर आपने ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल लिखा है, उसको मतलब मेन स्किल्स लिखे हैं, आपने क्या इम्पैक्ट दिखाया है, तो देन व्हाट विल हैपन इज यू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग, मतलब 50% वहीं पे आपका चांस इंप्रूव हो गया टू गेट द इंटरव्यू कॉल. नाउ अगेन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एज आई टोल्ड, you have to explain the things in a clear way कि आपको क्यों इसमें इंटरेस्ट है. तो फर्स्ट तो many people again it comes down to the interview preparation in general also. It's not only for internship, even if you're a youngster who is trying to shift jobs, आप एक तो उनकी कंपनी के ऊपर रिसर्च कीजिए अच्छा सा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंपनी, वो कंपनी काम क्या करती है, राइट, आपके गोल से कैसे अलाइन होती है, राइट. आपको उस कंपनी का कोई स्पेसिफिक, जैसे इफ यू अगेन गोइंग टू साइबर सिक्योरिटी और वेब डेवलपमेंट, तो उनका क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अच्छे से किए हैं, कहीं गूगल में आपने रिसर्च किया कि यू आर इम्प्रेस्ड विद दिस दैट अप्रोच, या एक नया प्रोजेक्ट जो उन्होंने अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया, राइट. तो ये सब एक अच्छा सा रिसर्च कीजिए, बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी आस्क what do you like about our company or why do you want to join us, तो ये सब पॉइंट्स आप उसको बोल सकते हैं. तो उससे पता चलेगा कि आप रिसर्च, आप सचमुच में इंटरेस्टेड हैं, एंड दैट यू नो समथिंग अबाउट आवर कंपनी, यू नो समथिंग अबाउट आवर कल्चर, राइट. तो उस हिसाब से दैट विल आल्सो गिव यू एन एडेड एडवांटेज व्हेन इवन व्हेन यू आर डूइंग फाइंडिंग योर इंटर्नशिप और योर जॉब, राइट. तो मेजर चीजें, ये सब चीजें लोग करते नहीं हैं. एंड देन when we ask, the last question generally होता है, do you have any questions for us, ठीक है. एज अ इंटरव्यूअर आई लास्ट यू कि भाई आपको कोई डाउट है, आपको कुछ और पूछना है आपकी तरफ से. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द यंग folks they say no, and again that is a very big red flag I would say, क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई आपको और कुछ जानने की उत्सुकता नहीं है, राइट. यू आर नॉट क्यूरियस टू नो मोर, राइट. तो एक तो काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू ऐसा है कि इट्स अ कॉलेज का वाइवा वो से, राइट. ठीक है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा और मैं आंसर दूंगा, फिर वो मैं आ जाऊंगा, फिर भगवान भरोसे वो सिलेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं. सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ रॉन्ग अप्रोच, राइट. इट्स अ टू वे डिस्कशन कि आपको भी लगे कि हाँ ये कंपनी थोड़ा मेरे एटीट्यूड या मेरा जो एक पर्सनल वैल्यूज है उसके साथ अलाइन करता है, ये भी है. और दैट अदर पर्सन शुड आल्सो फील कि हाँ दिस पर्सन कम्स ही विल जेल वेल विद द टीम और द कंपनी कल्चर में, ये भी गुड मिल जाएगा. तो these are some of the basic things which you need to do. तो first of all you make your resume impactful, ठीक है. सेकेंड वन, रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड अच्छा सा थोड़ा सा छानबीन करो कि क्या है क्या नहीं है, विच यू कैन टॉक अबाउट इन द इंटरव्यू. एंड थर्डली, अगर कोई पूछता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप अच्छा सा प्रिपेयर करके जाओ. So I think these are the top three suggestions I would give to that person who is finding out the job. Yeah, internship. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So he has passed out, but he is still not having a job after completing some certifications, right? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
So see, so I would say, see, there is two three things here also. Ki correct. So हम लोग traditionally, sorry, is it better now? Is it better now? हाँ. So traditionally मैं वही बोलूँगा कि yeah, we are accustomed to that sort of degree, right? कि ट्रेडिशनल वे ऑफ कि हाँ डिग्री किया है तो ही मतलब, और उसमें भी अगर इफ यू हैव टेकन 60% एंड अबव you are good, right? So that sort of a mindset is there. But there are certain companies, I mean, I don't know the exact names, but I have heard, like, I think something like, I'm not sure, I had read it somewhere a few years back, like I think Security Brigade in Mumbai. I think that company had told that we are not looking for degrees. If you are able to, or if you are having the skills, we would like to hire you. Right? So ऐसा मैंने देखा था. And then there are couple of other companies who give more importance to skills rather than degree. ठीक है, तो he probably might have to, so जैसे मैंने बोला वही, there could be three problems. One is either his resume is not up to the mark, right? So he has also put some generic statements कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, which is probably the interviewers are seeing in a lot of other resumes as well, राइट? तो या तो उसको ये रेज्यूमे इंप्रूव करना पड़ेगा टू शो इम्पैक्ट. The second one is obviously the proper technical preparation, and the third one would be whenever he gets a call, he has to proactively go and tell कि मुझे tasks दो. So if you are feeling that degree is an impediment, so it should go diplomatically telling say कि I don't think degree matters, but it's the skill that matters. Right? So if we can diplomatically say that to the hiring managers या उनके जो HRs हैं या जो भी हैं, so it will be little bit tough, I would say, because we are still in that mindset कि हाँ डिग्री होना जरूरी है. And I know still for few companies, and I myself am shocked at this stage where I think few companies are looking even after experience, right? Okay, it's not only like one or two experience, even after 10-12 years of experience, they are looking whether you are having an engineering degree or not. Okay, you might be having, you might have done your MCA and you might have 10-12 years of experience, but if you are still not having an engineering degree, they don't call you for the interviews. तो ऐसे भी companies हैं आज के ज़माने में with that old mindset. So sometimes it will be challenging, it will be little bit मतलब rough रहेगा, but let tell him so जो भी audience है आपके, so please don't lose hope. There are companies which will give you that opportunity to based on your skill rather than your degree. Okay, and the another thing is, I would suggest you can also look at freelancing or contract sort of roles, because उनका भी थोड़ा बहुत डिग्री का ये कम रहता है sometimes, especially if you are working for new startups across maybe foreign locations. Say they are based out of Dubai or they are based out of UK, Netherlands, and things like that, but they are wanting somebody to do on a contract role, right? Just I think there is some company called I don't remember the name. I think Crossover or something. So which is hires across the globe. Okay, you can do remote job but across the globe. So ऐसे you might have to find out little bit. There are other companies also, small companies in India also, which will like I think Chennai में एक दो companies मैंने सुनी है. I don't recollect the names. It are not major ones, but these guys will give you at least at a contract level एक initial breakthrough तो देंगी based on your skills, right? So he can apply for those sort of jobs and try to see what he can do best. Okay. I think the question has been answered. So, sir, the next question comes here is like, how much a starting job matters? Like, मैंने अपनी पहली जॉब किसी और डोमेन में ली, मुझे स्विच करना है, मुझे कब स्विच करना है, या मुझे लाइक किस डोमेन में जॉब अच्छी मिल रही है? लाइक देर आर सर, कभी कभी हमारे पास सिनेरियोज होते हैं कि हमारे पास अदर डोमेन में जॉब अच्छी मिल रही होती है, बट हमारे डोमेन में जॉब लाइक अच्छी नहीं होती है, या पे स्केल उतना अच्छा नहीं होता है, व्हेन टू स्विच जॉब्स एंड, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो सर इसका हम्म. क्या सोल्यूशन है, या क्या कब क्या चीज़ करना चाहिए, ये इसका एक बार थोड़ा सा आप समझना था. Okay. So देखो, first job is always I would say it depends.
देखो अभी मेरा फर्स्ट जॉब, इफ यू वुड नॉट बिलीव, आई बिफोर जॉइनिंग मैकफी आल्सो फॉर 4 months आई वाज इन अ हॉस्पिटल. Okay. Okay, so that was my first job actually. Okay, so just for 4 months in cyber security, yes, McAfee was my first job. But in normal, अब उसमें मैं IT में था. IT Hmm. का एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम था, that was for the in a hospital in Bangalore, Okay. and वो 4 महीने का किया था. So now the thing is, see, what I would suggest is, if you have good opportunities, like wherein you are getting offers and you are this thing, then you can decide. ओके कि मुझे कहाँ पे जाना है, ये पैकेज अच्छा है कि कंपनी अच्छा है कि जॉब अच्छा है, क्या है, यू कैन हैव अ, Hmm. यू कैन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू प्रायोरिटाइज, राइट. एंड बट फर्स्टली मैं एक जेनरिक एडवाइस दूंगा कि पहले उसमें जॉब में आप डेफिनेटली सैलरी को प्रायोरिटाइज मत कीजिए. ओके कि जस्ट बिकॉज मुझे 2 लाख ज्यादा आ रहा है करके आप उस जॉब में मत जाइए, अनलेस अंटिल यू आर रियली वांटिंग टू डू दैट, right, or at least in the same domain. Just for example, if you are good at say marketing, right, Hmm. लेकिन आपको एक टेक्नोलॉजी जॉब में मिल रहा है, just Hmm. because you got 2 lakhs more, don't go to a technology job which you don't like. राइट, वहां पे जाके आप अपने आप को कोसो नहीं कि अरे यार मैं तो मार्केटिंग और सेल्स में अच्छा था, बट ये 2 लाख के चक्कर में आ गया, यहाँ पे अभी मुझे कोडिंग सीखना पड़ रहा है या मुझे टेक्नोलॉजी सीखना पड़ रहा है, राइट. सो डोंट डू दैट. ओके, एंड जनरली क्या होता है कि इफ यू वी आर गाइडेड बाय कंपैरिजंस Hmm. फ्रॉम फ्रेंड्स और थिंग्स लाइक दैट कि भाई मेरे फ्रेंड को 5 लाख की नौकरी मिली, मेरे को 2.5 लाख की मिली है, तो चलो मैं भी 5 लाख की नौकरी ढूंढ लेता हूँ. सो लेट दैट नॉट बी अ गाइडिंग फैक्टर. The guiding factor should be whether you are wanting to do that job. जैसे अगर आपको जैसे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको हो सकता है 2.5 लाख की नौकरी मिली हो, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, गेट ऑन टू इट. गेट ऑन टू इट, जाओ, काम करो, सीखो. 2 साल के बाद आपका सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन उसके लिए आप पहले एक कुछ स्किल सीखो, कुछ बताओ कि व्हाई एम आई मोर वैल्यूएबल टुडे रादर देन 2 years बैक, राइट. तो एक जो एक्सपीरियंस जो होता है, वो दैट विल काउंट मोर इन द लॉन्गर रन रादर देन द सैलरी. सैलरी तो आपको मिल जाएगा, आप एवरी 6 मंथ्स आप नौकरी जंप करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, Hmm. राइट. लेकिन स्किल अगर आपको उसके हिसाब से अगर आपका स्किल नहीं है, तो देन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू. तो द गाइडिंग फैक्टर हैज टू बी व्हाट इज इट दैट इंटरेस्ट यू मोर एंड व्हाट इज इट दैट यू विल लर्न. और दूसरा बड़ा थिंग है कि आपका मैनेजर कौन है. Hmm. आपका मैनेजर कौन है, राइट, बिकॉज योर मैनेजर कैन मेक और ब्रेक योर करियर. तो अगर आपका मैनेजर थोड़ा सा प्रोत्साहित करने वाला है, हु विल हेल्प यू ग्रो, कि भाई थोड़ा पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो उस टाइप के मैनेजर्स के अंडर आप काम करें, भले ही थोड़ा सा सैलरी कम भी होगा इनिशियली. सो दैट विल आई थिंक हेल्प यू मोर इन द लॉन्गर रन rather than a person who is not supporting your career growth. ओके, तो अगर आपके कम और कंपनी भी डिपेंड करता है कि कंपनी के पॉलिसीज क्या हैं, वो सपोर्ट करती हैं, क्योंकि देखो अभी जनरली क्या होता है कि काफी लोग, यू नाउअडेज इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन ग्लासडोर या एम्बिशन बॉक्स, जहां पे आप जाके एक कंपनी का भी रेटिंग देख सकते हो, एक डिवीजन का भी रेटिंग देख सकते हो कि लोग छोड़ने के बाद उस कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, या उनका एक जनरल परसेप्शन क्या है कि Hmm. वेदर दिस कंपनी एक्स वाई जेड इज गुड, Hmm. उसका कल्चर क्या है, उसके मैनेजर्स कैसे हैं, राइट. Hmm. वो क्या एम्प्लॉयज का करियर ग्रोथ का देखती है, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखती है, राइट. सो दिस विल ऑल बी द गाइडिंग फैक्टर्स इनिशियली rather than your salary. Hmm. ओके, तो मैं वही बोलूंगा कि आप अपना पहले तो अच्छा सा जो भी आपका डोमेन है उस पे आप फोकस करो, वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन. डोंट गो बिहाइंड की, क्योंकि ऐसा होता है कि स्पेशली व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड आफ्टर योर कॉलेज, तो कोई बोलेगा जावा अच्छा है वो सीख लो, कोई बोलेगा पाइथन अच्छा है वो सीख लो, कोई बोलेगा मर्न स्टैक अच्छा है वो सीख लो, राइट, कोई बोलेगा साइबर सिक्योरिटी अच्छा है वो सीख लो. तो डोंट गो बियॉन्ड दैट, मतलब हर एक में यू कांट हाथ पैर मारोगे तो कहीं नहीं जाएगा. आपको क्या करना है, राइट, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. सो बेसिकली यू लुक एट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस कि एम आई अ नेचुरल टेक्नोलॉजी पर्सन,
राइट, मुझे नया टेक्नोलॉजी में ढूंढने में मजा आता है, काम करने में मजा आता है, उसके नीचे मतलब व्हाट अंडरलाइज दैट टेक्नोलॉजी, कैसे काम होती है, राइट, तो उसमें मजा आता है कि मुझे आई एम मोर इनटू लाइक व्हाट यू कॉल, जैसे वही बोला, कम्युनिकेशन मेरा इंप्रूवमेंट अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा है, सेल्स अच्छा है, राइट, हम्म, सो देन यू कैन प्रॉब्ली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, इवन इन दीज कंपनीज यू कैन अप्लाई फॉर दोज सॉर्ट ऑफ पोजिशंस। ऐसा नहीं है टीसीएस में सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम ही होता है, राइट, टीसीएस में भी मार्केटिंग का काम होता है, सेल्स का काम होता है, राइट, तो इफ यू मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर वर्किंग, तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं या इंटर्नशिप क्या मिलता है, यू कैन लुक एट दैट एंड ऑब्वियसली डू योर बेसिक रिसर्च अबाउट द मैनेजर, अबाउट द कंपनी एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन यू कैन go into that particular field, I would say, rather than focusing only on the salary. सो ट्रू सर। सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आया है, एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक, आज के डेट में देयर आर लाइक मैनी स्टार्टअप्स जो भी चल रहे हैं, देयर आर मैनी एमएनसीज, मैनी मिड साइज कंपनीज। सो किस कंपनी के साथ हमें अपना करियर शुरू करना चाहिए? लाइक कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि लाइक मैं स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, या नहीं करना चाहिए, या क्या प्लस माइनसेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज एडवांटेजेस होते हैं। तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो अगेन इसके दो पहलू हैं। हम्म, सो वन इज, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस, ओके, ऐसा कुछ हम्म, सही या गलत ऐसा करके कुछ है नहीं, तो इसमें डिपेंड्स क्यों, क्योंकि एक सेटल्ड कंपनी जैसे से फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल, जैसे आपका एक्सेंचर हो गए या हम्म, टीसीएस हो गया या सोनी हो गया, तो हम्म, उसमें एक कुछ प्लसेस एंड माइनसेस हैं, एंड स्टार्टअप्स में भी कुछ प्लसेस एंड माइनसेस हैं। इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस, राइट, तो हम्म, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी व्हेन यू आर गोइंग टू बिगर कंपनीज, तो क्या होता है कि सब कुछ सेटल्ड रहता है, प्रोसेसेस आर ऑल इन प्लेस, ठीक है, तो वैसा वो नहीं लगेगा कि भाई अच्छा इसके लिए मुझे क्या करना है, तो देयर विल बी अ सर्टेन प्रोसेस, अच्छा ऐसा है तुम्हारा टास्क ये है तो तुमको ये करना है, यहाँ पे टिकट क्रिएट करना है, यहाँ पे ये है ये है ये है, तो यू स्टार्ट डूइंग दैट, ओके, यू स्टार्ट लर्निंग, बट यू स्टार्ट डूइंग दैट विच इज नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, राइट, और सेट अप समथिंग न्यू, राइट, तो सेटल्ड प्रोसेसेस हैं, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन यू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, एंड देन दे विल हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, समटाइम्स आई मीन देयर आर डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो आप एक काम करने के बाद एक डेढ़ साल बाद इफ यू वांट टू डू वहाँ पे आईजेपी करके बोला जाता है काफी जगह पे, इंटरनल जॉब प्रोसेस, तो where you can shift from one again division to another division, या from one project to another project, या one from one team to another team, ठीक है, हम्म, तो that sort of flexibility would be there, opportunities will be there in bigger companies, क्योंकि उनके client base बहुत ज्यादा होंगे, राइट, तो that will be one of the grace, and then definitely एक sort of थोड़ी सी security भी रहती है initially, that at least मेरे को month on month I'll get my salary, राइट, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आता रहेगा, एंड देन आई विल बी एबल टू कंटिन्यू देयर, सो एक सॉर्ट ऑफ स्टडी वर्क लाइफ बैलेंस टाइप का रहेगा इनिशियली, एटलीस्ट यू विल फील कि ओके इफ आई वर्क इन दीज बिग कंपनीज आई डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दिस सैलरी या व्हाटएवर दैट इज, राइट, लेकिन माइनसेस ये हैं कि क्योंकि आपका सब प्रोसेसेस सब सेटल्ड है, ऑलरेडी वेल बिल्ट इन प्लेस है, सो यू आर ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच यू कैन लर्न, राइट, फ्रॉम अ हम्म, स्क्रैच, की कैसे डेवलप करना है, सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू विल गेट इन योर स्टार्टअप, राइट, स्टार्टअप में क्या होता है कि वी विल, इट डिपेंड्स अगेन ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप, उनका फंडिंग कैसा है क्या है, बट देन एज्यूमिंग अ डिसेंट कंपनी with a good amount of funding and all, still you will be, they will spend it मतलब frugally, क्योंकि उनके पास अभी उतने क्लाइंट्स नहीं होंगे, राइट, सो दे हैव टू, पैसा देख देख के ही दे विल स्पेंड, right, so you have to do a lot of research on your own, this thing, probably they might not spend too much money on your training and certification, तो तुम्हें जो करना है खुद से थोड़ा सीखना पड़ेगा, खुद से करना हम्म, पड़ेगा, प्रोसेसेस नहीं रहेंगे, राइट, जैसे अभी एस्केलेशन आया तो कस्टमर को कितने दिन बाद फॉलो अप करना है, कितने टाइम के अंदर पहला रेस्पॉन्स भेजना है, राइट, सो ऑल दीज थिंग्स यू विड हैव टू क्रिएट ऑन योर ओन, राइट, या मतलब विथ अलोंग विथ अदर टीम मेंबर्स, जो और एक एक बंदा रहेगा या दो दो बंदे, तीन तीन बंदे रहेंगे एक छोटे छोटे से डिपार्टमेंट में, क्यूए मतलब इट विल नॉट बी अ 20 मेंबर टीम प्रोबेबली,
राइट? तीन मेंबर होंगे क्यूए के, तीन मेंबर होंगे डेवलपर्स के, तीन मेंबर होंगे सपोर्ट के, राइट? तो यू विल तीन मेंबर होंगे सेल्स मार्केटिंग के, राइट? सो नाउ अगर अगर कोई क्यूए नहीं आता है बंदा, तो वो प्रॉब्ली यू माइट हैव टू स्टेप इन, दे माइट से आज का क्यूए थोड़ा सा बेसिक टेस्ट ये भी सीख लो तुम, क्यूए भी सीख लो, ऑल्दो यू आई हैव हायर्ड यू फॉर अ सपोर्ट रोल, बट यू माइट हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ अ क्यूए, राइट? सो एटलीस्ट 2-3 दिन वो बंदा जब तक वापस नहीं आया, तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू विल स्टार्ट लुकिंग एट दैट एंगल, राइट? एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें इन बिगर कंपनीज यू विल नॉट गेट टू नो हाउ द सेल्स रियली हैपेंस। और हम लोग क्वार्टरली मीटिंग्स में या टाउन हॉल्स में बोल देते हैं कि इस क्वार्टर का इतना रेवेन्यू आया, इतना प्रॉफिट था, इतना सेल्स हुआ, हम्म, राइट? लेकिन वो कैसे हुआ, वो बैकएंड में कितनी मतलब मुश्किलें आई या कितनी चैलेंजेस थी, या समटाइम्स हम्म, फ्यू पीपल वुड नॉट बाय आवर प्रोडक्ट और गो अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट, वो सब डिटेल्स तुम्हें बिगर कंपनीज में मिलना मुश्किल है अनलेस यू आर एट अ टॉप मैनेजमेंट लेवल। ओके, सो बट इन स्टार्टअप एवरीथिंग विल बी मेनी मच मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हर रोज उनको चाहिए कि न्यू कस्टमर आए, तो अगर ये कस्टमर गया तो हम्म, क्यों गया, फॉर लैक ऑफ व्हाट फीचर इन आवर प्रोडक्ट, वो क्या पूछ रहा था, तो हम लोग ने उसको अच्छा सा सपोर्ट, क्योंकि समटाइम्स बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग इन साइफोर्ट एज अ दिस थिंग, आई रिमेंबर अ कपल ऑफ customers bought our product because of good support, and couple of customers मतलब POC करने के बाद they didn't buy our product because they wanted a specific feature which we couldn't provide to them in a particular time frame। तो मतलब अब ये सब जो चीजें हैं ये तुमको बिगर कंपनीज में नहीं मिलेंगी। तो यू विल गेट टू नो कि भाई अच्छा स्टार्टअप में, तो यू विल गेट टू नो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, कि हाउ सेल्स वर्क्स, कैसे पिचिंग पहले जाता है, फिर उसके लिए सपोर्ट कैसे करना होता है, मतलब डील्स किस किस साइज के आते हैं, राइट? किसको प्रायोरिटाइज करना है, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इन द स्टार्टअप्स, राइट? सो एट द सेम टाइम दे विल आल्सो गिव यू मतलब फ्रॉम अ वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा बहुत, हाँ जब काम रहेगा तो करना ही पड़ेगा, बट देन समटाइम्स यू विल आल्सो हैव द फ्रीडम कि अच्छा ठीक है भाई, तुम 5 सुबह 9 बजे ही लॉग इन करना है, ऐसा नहीं है, यू कैन कम एट 10 o'clock 11 o'clock, वर्क टिल 4 o'clock 5 o'clock एंड देन गो बैक होम, राइट? सो वरना जनरली ट्रेडिशनल कंपनीज में क्या होता है कि 9 आवर का लॉग इन होता ही है, वो नहीं हुआ तो एक मैसेज आएगा तुम्हारे मैनेजर को कि तुमने 8 घंटे तक लॉग इन नहीं किया, right? So that will always be plus and minuses in both the companies, it depends आपको experience क्या चाहिए, ठीक है? And then but what I would say is I everybody should work in a startup once in a while at least। तो हम्म। उनको तब क्या होगा कि एक बड़ा जो इकोसिस्टम का जो पिक्चर है, जो मैं बोल रहा था, बिगर पिक्चर ऑफ हाउ अ कंपनी वर्क्स ट्रूली वर्क्स, दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सर आज के टाइम में जो हमारा अभी करंट मार्केट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब जा भी रही है, और इसी के साथ साथ लाइक जो जॉब्स हैं, अब जल्दी जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल, जैसे आपने देखा जो हमारा पिछला 2023 2024 उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला भी गया, एंड नए जॉब्स का आना भी मुश्किल हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में खुद को कैसे प्रिपेयर करना है टू गेट अ गुड जॉब इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, या क्या ऐसे चीज़ों के साथ हमें ट्रेन होना चाहिए, या क्या ऐसे बेसिक्स है, तो उनके बारे में आपका लाइक क्या सजेशन रहेगा सर? हम्म। तो द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली, देखो आज के दिन में कंपनीज आर लुकिंग एट समथिंग कॉल्ड एज ROI, राइट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यस मैं सर। अगर आज आपको मैं 100 रुपए की तनख्वाह दे रहा हूँ, तो मुझे क्या आपसे 110 रुपए का काम निकालना आता है, या मतलब आप मुझे वो प्रोवाइड करोगे? कि ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको 100 रुपए तनख्वाह दे रहा हूँ एवरी मंथ, लेकिन आप सिर्फ 80 रुपए का काम करके जा रहे हो, राइट? तो वो तो सो फर्स्ट थिंग इज दैट, सो राइट, सो उसके लिए आपको स्किल्स बिल्ड करने पड़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू हैव टू हैव अ ब्रॉडर नॉलेज ऑफ द डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है? लेकिन एक्सपर्टीज चाहे तो एक या दो में कर लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीबडी विल बी एन एक्सपर्ट, इवन टू बिकम एन expert in even after 16-17 years, I don't call myself an expert, I'll call myself as a professional, but I'll not call myself as an expert, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए आई मीन यू हैव टू रियली डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन वन पर्टिकुलर फील्ड। ओके, हम्म, मतलब हाँ, आपको पता रहेगा कि क्या है क्या नहीं है क्या है, लेकिन यू dwell deep into one subject
And if you are doing some patents, yeah, उस time में, then I can call you probably a expert in that particular field, right? So what I would suggest is आज के दिन में there is nothing bigger this thing than showing off your skills. And as a fresher, तो मैं वही बोलो ना, how you want to stand out in the market. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ धांसू प्रोजेक्ट ही करना है. Even if you are prepared with your basics very well, okay, and then अगर आपने जाके बोला कि लास्ट में मैं उस टाइम बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि if you have any questions or something like that, तो Hmm. उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि to stand out from the crowd you can show your projects whatever you have done. It doesn't have to be perfect again, because we know that as freshers या junior folks it will not be perfect, राइट. Hmm. कि तो वो हम भी समझते हैं कि भाई आप यदि तुम सीख रहे हो तो इट वोंट बी 100% परफेक्ट, देयर विल बी फ्लॉस, बट द आइडिया दैट यू डिड समथिंग ऑन योर ओन, दैट विल स्टैंड आउट. ठीक है. तो रैदर देन अब जैसे मैं और तुम दोनों ही फ्रेशर्स हैं एंड आई गो एंड टेल द इंटरव्यूइंग मैनेजर दैट आई डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट टू शो फ्रॉम माय साइड. जैसे उन्होंने कुछ पूछा कि हैव यू डन एनी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर साइड और व्हाट डू यू डू, तो मैं बोलूंगा कि सर आई डोंट हैव. तो देन एंड इफ यू आर गोइंग एंड यू टेल दैट ओके आई डिड दिस प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, ठीक है, एक मैंने अपना एक लैब सेटअप किया, एक थोड़ा सा ये किया है, या यू डिड अ स्मॉल दिस थिंग एज की एक कंपैरिजन किया कि 4 ईडीआर टूल लिए, ठीक Hmm. है, और उसके ही क्या फीचर्स हैं, क्या खामियां हैं, या किस इज एंड व्हाट यू रिकमेंड एज अ व्हाई यू फेल्ट आफ्टर बेस्ड ऑन योर रिसर्च व्हिच इज द बेस्ट ईडीआर टूल अकॉर्डिंग टू यू. इतना ही रिसर्च करके भी जाओगे तुम and you present it to them for 5-10 minutes, within that 5-10 minutes, I think you it's a game changer for you. So people will be like, acha ye banda, although he is a fresher, he has done something on his own, राइट. सो दिस इज वेयर आई वुड से आज के दिन में स्किल्स तो एक नंबर वन, यू मेक श्योर दैट यू नो योर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, योर नेटवर्किंग, जैसे डीएनएस कैसे काम करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, राइट, क्लाउड के क्या मॉडल्स है, क्या चीज है, वाई पीपल आर मूविंग टू क्लाउड. और द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज आप अगर थोड़ा बहुत भी ए आई, जेन ए आई, एजेंटिक ए आई, जो कि आज का मतलब इन थिंग है, उसके ऊपर इफ यू आर एबल टू learn and obviously have some basic decent knowledge and how it helps with respect to cyber security. Yeah, from a cyber security perspective, if you are able to tell them something either from a defensive measure or from a attacking perspective, जैसे prompt injection हो गया या data poisoning हो गया of in your LLMs, right, तो उस टाइप को आप क्या, आप अगर आपने एक छोटा प्रोजेक्ट ही किया है कि आपने LLM को data poison किया है, Hmm. right, या आपने prompt injection ऐसा दिया but that it didn't give the intended output and it gave a different output than what it was intended for. So these are all small things which will show that you are ready to upskill, राइट. एक तो आप क्या एम्ब्रेस कर रहे हो टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, वो दिखाएगा. एंड देन इट विल ऑल्सो शो दैट यू हैव अ क्यूरियसनेस टू लर्न. एंड देन obviously you are showing that you are different from others who are telling that I don't know anything about gen ai or agentic ai or whatever that is, right. So I think primarily I would say it is all about upskilling is the need of the hour. And showing again, फिर से I'll repeat back, it is all about showing the impact on your resume कि आप क्या कैसे दिखाते हो और कैसे narrate करते हो आप अपने आप को communication के थ्रू. Okay. सो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है. एक like for a person who is already skilled in cyber security domains like for threat intelligence, cyber security investigation domain, इन सब डोमेन्स में अगर हमें फ्रीलांसिंग करना है तो व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स और व्हाट शुड बी द रोड मैप, और इन केस अगर लाइक एज यू ऑलरेडी इज आर फाउंडर, सो मुझे लाइक अगर मुझे इसमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड बी टेकिंग इन माइंड, या क्या चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए. व्हाट आर द सर्टिफिकेशन एज एन पर्सन आई शुड हैव, और व्हाट आर द सर्टिफिकेशन माय कंपनी माय स्टार्टअप शुड हैव फॉर लाइक डूइंग फर्दर वर्क इन दिस डोमेन. ओके. तो देखो, एक तो है देर आर अगेन मल्टीपल थिंग्स. नाउ व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू स्पेसिफिक, जैसे जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो गया, Hmm. so that is a very big domain, right, Hmm. in itself. So now, and definitely you would it again depends whether you are doing it as a private investigator or you want to join hands with LEA, Hmm. right, and then do it. तो अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो
तो या करना चाहते हो ऐसा काम, तो देन ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ companies already in the market who do private investigations for probably your celebrities and things of that nature, या high net worth individuals जो होते हैं, जो businessmen Hmm. होते हैं, जिनका 500-600 करोड़ का होता है, उनका कुछ ना कुछ होता होगा. So there are a lot of businesses who require private investigators. They don't want to go to a law enforcement agency, right? So there will be that sort of requirements as well. सो नाउ वो करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो यू माइट हैव टू स्टार्ट शोइंग योर एक्सपर्टीज इन वन पर्टिकुलर फील्ड. Now whether it is your OSINT or your whether it is your forensics or whatever it is, तो आपको अपना एक्सपर्टीज दिखाना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट मार्केटिंग योरसेल्फ बाय लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या व्हाटएवर, राइट, वेर इन यू से दैट कि मेरे पास ये स्किल है एंड इफ यू आर वांटिंग टू get a private investigation done, I am there for you, right? And then you can obviously look at the challenges what will come across with it. Now you might have to be prepared in terms of something goes wrong in that. How do you bank upon, or who is your legal, so uske hisab se, so you might have to work on the legal aspects of it, that you are not some financially or legally liable, matlab, right? So wo sab contracts, clauses, so you should make sure that those are all in place well before you, so you can take a guidance of somebody who is already there in the field, right? Some private investigators who are already there in the field, you can probably connect with them. You can start checking with them on what are some of the challenges, what are which will come, right? So वैसे करके you can get some idea about how to start in that field, right? So basically वो बोलते हैं ना, तुम्हारा काम तुमसे पहले पहुंचना चाहिए, right? So Hmm. your work should reach people keep telling that you have done this, so you can start small. Obviously you Hmm. can't go directly and do something big, so start small. You ask, if you get some clients, you start putting small advertisements or things like that on your Instagram or your LinkedIn profile, that I'm starting to do a private, I'll be happy to help you, assist you with your digital forensics cases or requirements. ऐसा कुछ डाल के you have to start marketing yourself. And if slowly अगर कोई दो तीन बंदे आते हैं, and then you are able to help them in their journey, right? So then they would definitely spread their word of mouth कि this guy is capable of doing these things, right? So वैसे ही थोड़ा सा आपका contacts बढ़ेगा, and then you will be able to help and grow. So that is one of the things. Now the second thing is, if you want to work with LEAs, again, as we so recently we had been to this Amroha police internship, so where they told that there are a lot of opportunities in NTRO, your RAW, your Ministry of Home Affairs में, I4C में, right? So you can start volunteering there. You can start building a rapport with couple of people there, right? कि कुछ है cases है, तो you can go and solve those cases, so which will again build your credibility, right? कि ये बंदा ये काम कर सकता है. So then definitely you can, next time if there is a local case, right, it's not necessary that you have to always fly to Delhi and do this thing. So if you are, again, you build your credibility among the law enforcement people कि हाँ ऐसा एक बंदा है who has solved these cases. And if there is a local case in your home state, right, in UP or whatever, Bihar or wherever it is, so then you can, obviously they will refer you to those sort of cases, small cases, wherein they can help, you can help them, right, with the analysis and things like that. So I think that would be the one of the best ways to start, because nothing beats hands-on experience, again, as I tell, right? मतलब छोटा ही हो सकता है, but then nothing beats that credibility when you are doing that real work, right? It doesn't have to be a big project or big this thing. If you build Hmm. your credibility by doing small tasks, and then definitely people will trust you more on getting things done. Okay. So that will be one of the ways. And then definitely you need to, but make sure as a startup or something, you are not making sure that you are compliant with all those things legally. You take a, what do you call it, advisor, or you keep a legal advisor, a financial advisor, in terms of what, Hmm. if something goes wrong, am I liable, right? So also contracting and obligations, you need to make sure that you are not into getting into sort of any sort of trouble अगर ऐसा कुछ होता है, तो या मिनिमल ट्रबल हो. Okay.
I hope all the questions has been answered by sir. And sir, thank you for giving us the time for this podcast. And we'll get the audience with a new guest with within the same podcast series. So thank you for joining us for the podcast, sir. And I hope all the questions has been answered to the audience. So thank you for joining, sir. Thank you, Anshuman. It was a pleasure. So hope, yeah, I was able to answer their questions. And if any this thing is needed, so they can connect me via LinkedIn, definitely, and I would be able to help them. Okay, sure, sir. Yeah, Thank you for joining, sir. So let's wind yeah, up the podcast. And thank you for okay. joining, guys. Also, stay tuned for more such podcasts. And we'll see you again in a new podcast episode of Season of Change. Thank you. Yeah, thank you.